Transmission modes. Okay. So transmission modes, see the transmission of binary data across a link can be accomplished in either parallel or serial mode. जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है बाइनरी डेटा दैट इज 1 and 0, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ लिंक, लिंक के थ्रू बाइनरी डेटा ट्रैवल होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड्स किसमें, ट्रांसमिशन मोड जो है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पैरेलल और सीरियल मोड, पैरेलल और सीरियल मोड। पैरेलल मोड में क्या होता है, मल्टीपल बिट्स आर सेंट विद ईच क्लॉक, ठीक है, ये वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सी ट्रांसमिशन मोड इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पैरेलल और सीरियल मोड, ठीक है। Data transmission mode, parallel and serial. Serial is divided into asynchronous, synchronous and isochronous. Okay, asynchronous, synchronous and isochronous. So first we will see what is parallel transmission. See, in parallel transmission, this is sender and this is receiver. Okay. So parallel transmission means multiple channels are there, 8 channels are there. In parallel transmission, 8 channels are there. You can count it. Okay, this see this line, red color line. 8 channels are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 channels are there in parallel transmission. That means you can send 8 bits at a time. At a time, simultaneously, you can send 8 bits at a time. What is parallel transmission? Parallel transmission में you can send 8 bits at a time. Okay, 8 channels are there because 8 channels are there. 8 channels are there means you can send 8 bits at a time. Bits समझते हो? Bits, bit क्या होता है? Either 1 or 0. ठीक है, तो ये डेटा है, दिस इज द डेटा 0 1 1 0 0 0 1 0. टोटल काउंट इट, 1 बाइट है ना, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, राइट। 8 बिट्स सेंड कर सकते हो थ्रू 8 चैनल्स, सो वी नीड 8 लाइन्स, राइट। What is parallel transmission? Parallel transmission is in parallel transmission we can send 1 byte data at a time and 8 channels are present in parallel transmission. So parallelly, simultaneously you can send 8 bits at a time. What is serial transmission? See, in serial transmission, bits are sent one after another. Bits are sent one after another means एक के बाद एक, एक के बाद एक. जैसे for example, this is the data 0 1 1 0 0 0 1 0. So first, what will happen? See, first 0 0 क्या होगा? We will send 0 through this link. Then after 1, then 0 0, then 0. And after this 0 1, then 1, then 0. Means in serial transmission, bits are sent. Bits are sent one after another, एक के बाद एक, and only one channel is present in this. And only one channel, or you can say one line, one wire is present in this. In serial transmission, okay. दिस इज सेंडर, ये सेंडर का डेटा है, यहाँ पे दिया है। रिसीवर को यही रिसीव हो रहा है, बट डेटा कैसे ट्रैवल हो रहा है? ओनली वन चैनल इज प्रेजेंट, ओके। ओनली वन चैनल इज प्रेजेंट मींस एक चैनल में एक ही बीट एक टाइम पे जा सकता है, तो पहले वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जाएगा। पर इन पैरेलल ट्रांसमिशन 8 channels आर देयर मींस 8 bits you can send simultaneously at a time. You can send 8 bits in parallel transmission, but in serial transmission you can send क्या, bits are sent one after another because what is the reason? Only one channel, only one wire is present in this, in serial transmission. Okay. Okay, now the next type is, we have seen parallel and serial transmission. Now see the types. Okay, first type is serial transmission का asynchronous, then synchronous and isochronous. Okay, so what is asynchronous transmission? Asynchronous transmission में you have to remember this, we send one start bit. Start bit को 0 बोलते हैं हम लोग. Start bit is denoted by, is indicated by 0. And 1 means stop bit. 1 means stop bit. 1 का meaning is stop. 0 का meaning is start. Okay, 0 means start and 1 means stop.
So what happens in asynchronous transmission, we send वन स्टार्ट बिट, एक स्टार्ट बिट भेजते हैं, ठीक है, स्टार्ट बिट मीन 0, ओके, एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जब फ्रेम सेंड होता है, डेटा सेंड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल सेट स्टार्ट बिट 0 सेट करेंगे, ठीक है, मीन्स वी आर गोइंग टू सेंड दी डेटा, दैट इज स्टार्ट बिट। तो हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, हाउ वी विल रिप्रेजेंट, विद द हेल्प ऑफ 0, 0 मीन्स स्टार्ट बिट, एंड वन और मोर स्टॉप बिट एट द एंड ऑफ ईच बाइट। एक डेटा कंप्लीट हो गया मीन्स समझो 1 बाइट डेटा है, तो 1 बाइट डेटा के स्टार्टिंग में स्टार्ट बिट लगेगा 0, और 1 बाइट डेटा जब एंड हो जाएगा उसमें स्टॉप बिट लगेगा 1, मीन्स डेटा कंप्लीट हो गया। एट द एंड ऑफ ईच बाइट, जब एक एक बाइट एट द एंड ऑफ ईच बाइट स्टॉप बिट लगेगा, स्टॉप बिट मीन्स 1। देयर मे बी अ गैप बिटवीन ईच बाइट, बोला बीट बाइट के बीच में गैप हो सकता है, ठीक है, बीट्स के बीच में नहीं, बाइट के बीच में गैप रहेगा। ऐसा नहीं कि एक एक बाइट सब साथ में साइमल्टेनियसली जाएगा, बाइट के बीच में गैप आ सकता है, बट देयर इज नो गैप बिटवीन बीट्स, देयर इज नो गैप बिटवीन बीट्स, देयर मे बी अ गैप बिटवीन ईच बाइट। बाइट समझते हो, व्हाट इज बाइट एंड बीट? वन बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स? वन बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स? 8 bits, right? One byte is equal to 8 bits, right? So you know this, okay? Now see what is synchronous transmission. Asynchronous हुआ, asynchronous here means asynchronous at the byte level, क्योंकि गैप है ना, asynchronous at the byte level पे, बीट नहीं है, बट द बीट्स जो सिंक्रोनाइज्ड है, क्योंकि उसके बीच में गैप नहीं है, बीट्स क्या सिंक्रोनाइज्ड है, वो सेम टाइम पे जाएगा, ठीक है, देयर ड्यूरेशंस आर द सेम, बीट्स की ड्यूरेशन जो है आपस, जैसे 1 बाइट है, 1 बाइट में 8 बीट्स है, ठीक है, तो उनके ड्यूरेशन सेम है, सब एक साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि पहले एक 0 जाएगा फिर 1 जाएगा, ऐसा नहीं, समझ रहे हो? बीट्स की ड्यूरेशन सेम है, बीट्स सब साथ में ट्रेवल होंगे, बट जो बाइट है उनके बीच में गैप हो सकता है। सपोज वी हैव सेंड 1 बाइट डेटा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वी आर सेंडिंग द सेकंड, वी आर सेंडिंग द अनदर फ्रेम, वो फ्रेम 2 बाइट का, ठीक है, तो देयर मे बी अ गैप बिटवीन द फ्रेम, बट बीट्स के बीच में है, जैसे फ्रेम है, फ्रेम मीन्स डेटा, हाँ, फ्रेम मीन्स डेटा ओनली, एक फ्रेम में 8 बीट का डेटा है, 8 बीट्स है, तो वो फ्रेम एक साथ ही जाएगा, समझ रहे हो, गैप बीट्स के बीच में नहीं है, तो बीट्स आर सिंक्रोनाइज, देयर ड्यूरेशंस आर द सेम, बीट्स आर सिंक्रोनाइज, देयर ड्यूरेशंस आर द सेम। अभी ये देखो, ये फिगर किसका, आसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का है, हियर यू कैन सी सेंडर एंड द रिसीवर, तो सेंडर इज सेंडिंग द डेटा, रिसीवर रिसीव कर रहा है, direction of flow is given here, okay, how the data is traveling, flow is given, direction is given here. Stop bit means 1, you have to remember this, stop bit means 1, 1 means 1 क्या डिनोट कर रहा है, it is stop bit, and 0 means start bit, okay, तो यहाँ पे डेटा ट्रैवल हो रहा है, गैप्स बिटवीन डेटा यूनिट, इट इज असिंक्रोनस डेटा, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ठीक है, हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो गैप बिटवीन फ्रेम्स हो सकता है, गैप बिटवीन डेटा यूनिट्स मतलब मींस गैप बिटवीन फ्रेम्स हो सकता है, बट देयर इज नो गैप बिटवीन दी बिट्स, देयर इज नो गैप बिटवीन दी बिट्स, ठीक है, ये बिट्स सब साथ में ही जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 1 0 1, ठीक है, फिर रिसीवर पे जाएगा, फिर ये डेटा अंदर का, ये नहीं देखना है, जो कलरिंग किया है ना, ठीक है, ये कलरिंग जो किया है उसको नहीं देखना है, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। इसका एडवांटेज ये, द रिसीवर विल अंडरस्टैंड दैट बाय लुकिंग एट दिस फ्रेम, what receiver will understand, if 0 is there, okay, if 0 is there means the sender is going to send the data, and if 1 is there, okay, after sending all the data, after sending all the data, अगर if the sender will set 1, सेंडर क्या सेट करेगा, 1 सेट करेगा, द रिसीवर विल अंडरस्टैंड दैट बाय लुकिंग एट द 1 कि अभी द सेंडर इज नॉट गोइंग टू सेंड एनी डेटा, ओके, डेटा फिनिश हो गया,
तो ये इंडिकेट करने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इज देयर, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इज देयर। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट का। याद रखना है, स्टार्ट मींस 0 एंड स्टॉप मींस 1। देयर इज अ गैप बिटवीन द डेटा यूनिट्स, बट देयर इज नो गैप बिटवीन द, देयर इज गैप बिटवीन द डेटा यूनिट्स मींस फ्रेम्स में गैप हो सकता है, बट देयर इज नो गैप बिटवीन बिट्स। ठीक है, बिट्स के बीच में गैप नहीं है। नाउ सी व्हाट इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। In synchronous transmission, we send bits one after another without start or stop bit or gaps. इसमें कोई start और stop bit नहीं होता है। In synchronous transmission, bits कैसे send होते हैं, one after another. There is no start or stop bit or gaps. ठीक है, as compared to asynchronous transmission, ये different है. There is no start, stop bit or gaps. So then it is the responsibility in synchronous transmission, it is the responsibility of the receiver to group the bits. The bits का grouping करना, जैसे अभी 1 बाइट का डेटा है तो वन आफ्टर अनदर जा रहा है। ठीक है, पहले 1 बीट जाएगा, देन सेकेंड बीट, देन थर्ड बीट, देन फोर्थ बीट। तो वो अरेंज करना होगा ना, अरेंज करके एक मैसेज बनेगा। समझ रहे हो, एक 1 बाइट का डेटा है, वो उसको ब्रेक डाउन किया गया है 8 बीट्स में। 1 बाइट का डेटा है, उसको इट इज कंपोज्ड ऑफ 8 बीट्स। तो वन आफ्टर अनदर ट्रेवल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 11000 ऐसा कुछ डेटा है, पहले 0111। तो लाइक दिस इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा फ्लो कैसा होगा, वन आफ्टर अनदर। तो उसको ग्रुपिंग तो करना होगा ना। रिसीवर, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर का है कि वो जो कितने भी बाइट का डेटा होने दो, वेदर इट इज 1 बाइट और 2 बाइट और 3 बाइट, ग्रुपिंग करना मतलब पूरा एक साथ करना मैसेज को, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होके जा रहा है वन आफ्टर अनदर। ठीक है, so it is the in synchronous transmission, it is the responsibility of the receiver to group the bits. ग्रुपिंग करना बिट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, रिसीवर का। सी दिस डायग्राम, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में देयर इज नो स्टार्ट और स्टॉप बिट। ओके, डेटा ट्रेवल हो रहा है, यहाँ पे देखो फ्रेम सेंड हो रहे हैं। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर 0 लेगा 111 पे, ग्रुपिंग पूरा एक साथ मैसेज जो है रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट इंडिकेट करने के लिए इसमें नहीं है इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। Now the next type is आइसोक्रोनस। सी आइसोक्रोनस मीन्स क्या होता है, जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल तुम ले सकते हैं इन केस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। इन केस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, टीवी का एग्जांपल्स लो। टीवी जो होते हैं, टीवी इमेजेस जो है, टीवी के जो इमेजेस है आर ब्रॉडकास्ट एट कुछ 30 इमेजेस पर सेकंड ब्रॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, टीवी के जो इमेजेस है दैट इज ब्रॉडकास्ट एट 30 इमेजेस पर सेकंड। तो वो 30 इमेजेस जो पर सेकंड, जो जैसे तुम कोई भी मूवी देखते होंगे ना या वीडियो देखते होंगे, तो इट इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स ओनली ना, इट इज मेड अप ऑफ इमेजेस ओनली, राइट। इमेजेस ही है ना, एक एक सीन के बाद एक सीन, एक सीन, एक सीन। तो कैसे कितने फास्ट चेंज होते हैं सीन, क्या तुमको गैप्स दिखाई देते हैं, उसमें नहीं दिखाई देते गैप्स। सीन फास्ट फास्ट चेंज होते, राइट। तो जो ऑडियो है, इट इज मेड अप ऑफ इमेजेस ओनली, सॉरी नॉट ऑडियो, वीडियो। वीडियो इट इज मेड अप ऑफ इमेजेस ओनली। ठीक है, तो जो ब्रॉड उनका जो स्पीड है ना इमेजेस का चेंजेस होने का, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए स्पीड। तो वो केस में तुम्हारा सिंक्रोनस काम नहीं करेगा। ठीक है, वो केस में सिंक्रोनस काम नहीं करेगा। आइसोक्रोनस क्या गारंटी लेता है कि फिक्स टाइम पे एट फिक्स रेट ऑफ टाइम। आइसोक्रोनस गारंटी क्या है, इट गारंटीज दैट एट फिक्स रेट ऑफ टाइम तुम्हारे इमेजेस जो है वो क्या होंगे, चेंजेस आएंगे उसमें। ठीक है, एट फिक्स रेट ऑफ टाइम तुम्हारे इमेजेस का तुम ये सेट कर सकते हो, टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, जो कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस गारंटी नहीं करता है। ठीक है, तो इन एसिंक्रोनस इट गारंटीज दैट एट फिक्स रेट ऑफ टाइम जो चेंज इमेजेस के जो ये स्पीड है, ठीक है, एट फिक्स रेट ऑफ टाइम वो चेंजेस होंगे उसमें। क्योंकि हम लोग कोई भी डिले, अगर कोई भी अनइवन डिले हुआ, समझ लो इमेजेस में अनइवन डिले हुआ, तो फिर वो प्रॉपर वीडियो प्रॉपर ये नहीं होगा, हमारा वीडियो नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर वीडियो नहीं रहेगा, वो उसका प्रॉपर क्वालिटी नहीं होगा। इसलिए आइसोक्रोनस में गारंटी है कि तुम फिक्स रेट ऑफ टाइम में सेट कर सकते हो इमेजेस को। ठीक है, तो ये आइसोक्रोनस कम्युनिकेशन यूज इन टीवी और टीवी के लिए यूज होता है ये, इन केस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, आइसोक्रोनस
transmission is preferred. So what we have seen, transmission modes. ट्रांसमिशन मोड कितने इसमें क्लासिफाइड किया गया है, पैरेलल एंड सीरियल. ओके, सीरियल में asynchronous, synchronous and isochronous. Okay, is it clear to all? What is parallel transmission? Let me know in the chat box. What is parallel transmission? Then we will start the next topic. What is parallel transmission? Define parallel transmission. See this figure. What is parallel transmission? In parallel transmission, 8 channels are there. We can send 8 bits at a time. Okay, simultaneously we can send 8 bits, right? In serial transmission, bits are sent one after another. Only one channel is there. Okay. ठीक है, यूनिट 2 का जो चैप्टर है, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्प्रेडिंग. What is bandwidth utilization? It is a wise use of available bandwidth. Utilization means available जो bandwidth है उसको यूज करना, यूटिलाइज करना टू अचीव सम गोल. ठीक है. Now we have to see first concept in this chapter is what is multiplexing. Multiplexing क्या होता है? See, multiplexing means whenever the bandwidth of a medium, जो मीडियम का जो बैंडविड्थ है, ठीक है, द whenever the bandwidth of a medium linking two devices, दो डिवाइसेस, हाँ दो डिवाइसेस है, ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ ए मीडियम, मीडियम जो दो डिवाइसेस है समझो, सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर कोई मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, सेंडर एंड रिसीवर कोई मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, सपोज केबल के थ्रू कनेक्टेड है. वो मीडियम कौन सा है? केबल है. ठीक है, तो जो बैंडविड्थ है केबल का, ठीक है, whenever the bandwidth of a medium linking two devices is greater than the bandwidth needs of the device. किससे ग्रेटर है बैंडविड्थ? मीडियम, जो मीडियम तुम यूज कर रहे हो, सपोज केबल है वो, तो केबल का जो बैंडविड्थ है, जो मीडियम का जो बैंडविड्थ है वो किसके ग्रेटर है? तुम जो डिवाइस यूज कर रहे हो डिवाइस से ग्रेटर है. तो लिंक को हम लोग क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं. समझ रहे हो? किसका बैंडविड्थ ज्यादा है? डिवाइस का बैंडविड्थ ज्यादा है. और किससे ज्यादा है? मीडियम के बैंडविड्थ से ज्यादा है. ठीक है, जो मीडियम यूज कर रहे हो उसके बैंडविड्थ से ज्यादा कौन सा बैंडविड्थ है? डिवाइस का बैंडविड्थ है. तो लिंक को हम लोग शेयर कर सकते हैं. कैसे शेयरिंग होता है? मल्टीप्लेक्सिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज, मल्टीप्लेक्सिंग. व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? नाउ सी, multiplexing, it is a set of techniques that allows a simultaneous transmission of multiple signals across a single data link. एक सिंगल डेटा लिंक के थ्रू तुम मल्टीपल सिग्नल सेंड कर सकते हो. व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउज द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस अ सिंगल डेटा लिंक. मींस एक सिंगल लिंक के थ्रू, एक सिंगल डेटा लिंक के थ्रू साइमल्टेनियसली तुम क्या कर सकते हो? मल्टीपल सिग्नल्स क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो. मल्टीपल सिग्नल्स को अलाउ करता है थ्रू अ सिंगल डेटा लिंक. मल्टीपल, इट अलाउज साइमल्टेनियस
transmission of multiple signals, simultaneous transmission of multiple signals across a single data link. Okay, now see, dividing a link into channels. अभी देखो ये लिंक है, उसको मैं चैनल में डिवाइड कर रही हूँ. सपोज ये क्या तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर है, दिस इज मल्टीप्लेक्सर डिवाइस, दिस इज डी मल्टीप्लेक्सर. ये मल्टीप्लेक्सर है और ये डी मल्टीप्लेक्सर है. ठीक है, ये इनपुट है जहां से डेटा इनपुट दिया जाता है, ये क्या आउटपुट है. ठीक है, MUX मीन्स मल्टीप्लेक्सर, डी मैक्स लिखा मीन्स डी मल्टीप्लेक्सर. नाउ सी वन लिंक है, लिंक कितना है, एक लिंक है, वन लिंक और n चैनल से. चैनल्स कितने n है, लिंक कितना एक है. ठीक है, चैनल्स मीन्स कितना डेटा तुम भेज रहे हो. ठीक है, जैसे 8 बिट्स डेटा है तो 8 चैनल्स हो गए, वन लिंक n चैनल्स. तो इसमें क्या दिखा रहा है, एक लिंक को चैनल्स में डिवाइड किया गया. एक लिंक को, लिंक मीन्स मीडियम, लिंक मीन्स मीडियम थ्रू विच तुम्हारा डिवाइसेस कनेक्टेड है. ठीक है, इसमें क्या शो हो रहा है, लिंक किस में डिवाइड हो रहा है, चैनल्स में डिवाइड हुआ है, एक लिंक और n चैनल से. डीमल्टीप्लेक्सर डिवाइस के थ्रू क्या होता है, जो तुमने इनपुट दिए हो आउटपुट तुमको यहाँ से मिलेगा डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू. Now see, we will see in detail what is multiplexing with the help of example also. सी मल्टीप्लेक्सिंग हम लोगों ने क्या देखे, एक सिंगल डेटा लिंक के थ्रू क्या करता है, अलाउ करता है साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स. ठीक है, मल्टीपल सिग्नल्स तुम भेज सकते हो. नाउ सी कैटेगरीज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM, WDM, TDM. फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तुम डिवाइड कर सकते हो वेवलेंथ एंड टाइम डिवीजन. ठीक है, FDM, WDM एंड TDM. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में नाउ सी, इट इज एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट कंबाइंस एनालॉग सिग्नल्स. इसमें ये क्या एक एनालॉग टेक्निक है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है दैट कंबाइंस एनालॉग सिग्नल. यहाँ पे देखो ये डायग्राम से क्लियरली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग. सी ये एनालॉग सिग्नल से, ये क्या है, एनालॉग सिग्नल से. ठीक है, डिफरेंट एनालॉग सिग्नल से. ठीक है, बेसबैंड एनालॉग सिग्नल्स. ये क्या हो रहा है, FDM है ना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में तो ये फ्रीक्वेंसी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी 3. ठीक है, 3 फ्रीक्वेंसी है. अभी ये क्या हो रहा है, थ्रू मल्टीप्लेक्सर डिवाइस डिफरेंट जो सिग्नल्स है, डिफरेंट जो सिग्नल्स है एक चैनल के थ्रू, डिफरेंट जो सिग्नल्स है वो एक डेटा लिंक के थ्रू ट्रैवल हो रहे हैं थ्रू मल्टीप्लेक्सर डिवाइस. थ्रू मल्टीप्लेक्सर डिवाइस जो डिफरेंट सिग्नल्स है वो ट्रैवल हो रहे हैं थ्रू वन सिंगल डेटा लिंक. थ्रू वन सिंगल डेटा लिंक डिफरेंट सिग्नल्स, इट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ, इट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ क्या, डिफरेंट सिग्नल्स थ्रू वन डेटा लिंक, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग. तो ये ट्रैवल हो रहा है. ठीक है, ये प्लस मीन्स ये जो तीनों जो सिग्नल है, ठीक है, वो ट्रैवल हुआ वन सिंगल डेटा लिंक के थ्रू. देखो ये दिख रहा है, ये मल्टीप्लेक्सर डिवाइस क्या कर रहा है, तीनों को कंबाइन कर रहा है. ये तीनों जो है फ्रीक्वेंसीज को उसने कंबाइन किया मल्टीप्लेक्सर डिवाइस ने, इसलिए यहाँ पे एडिशन का सिंबल दिया है और ये एक सिग्नल बना. ठीक है, अभी ये जाएगा डी मल्टीप्लेक्सर के पास. कहाँ जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सर के पास. तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, जो मल्टीप्लेक्सर ने डिफरेंट सिग्नल्स को एक में कंबाइन किया है, ठीक है, उसको डीमल्टीप्लेक्सर के पास गया, वो फिल्टर करेगा. डीमल्टीप्लेक्सर डिवाइस क्या करेगा, उसको फिल्टरिंग का कैपेबिलिटी है. फिल्टर करने के बाद वो उसको वापस सेपरेट करेगा डिफरेंट जो उसका फ्रीक्वेंसीज है. उसके बाद वो अपना डीमल्टीप्लेक्सर डिवाइस यूज करके क्या होगा, जैसे अभी ये फ्रीक्वेंसी ये एप्लीकेशन के लिए उसको ट्रांसमिट कर देगा, देन जिसके लिए उसको वो ट्रांसमिट करेगा, देन थर्ड फ्रीक्वेंसी जो एप्लीकेशन के लिए उसको ट्रांसमिट होगा. तो मीन्स क्या हो रहा है, इसमें फंक्शन क्या हो रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या कर रहा है,
कि डिफरेंस जो है, ये जो डेफिनेशन लिखा है ना, it is a set of techniques that allows a simultaneous transmission of multiple signals ये important word है, simultaneous transmission of multiple signals across a single data link। तो वो मल्टीप्लेक्सर डिवाइस के हेल्प से होता है, मल्टीप्लेक्सर डिवाइस की हेल्प से मल्टीपल सिग्नल्स को तुम एक सिंगल डेटा लिंक के थ्रू वो ट्रैवल होता है। देन डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, वो जो तुम्हारा कंबाइंड हुआ है, ठीक है, मल्टीपल सिग्नल्स, उसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद वापस से वो ब्रेक डाउन होगा अपने अपने सिग्नल में इंडिविजुअल। देन वो जहाँ पे ट्रैवल करना है उसके डेस्टिनेशन पे रीच करवाना, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का अच्छा ये फंक्शनलिटी एडवांटेज ये कि एक ही डेटा लिंक यूज हो रहा है, एक ही डेटा लिंक यूज हो रहा है, राइट। मल्टीपल सिग्नल्स तुम सेंड कर सकते हो एक डेटा लिंक के थ्रू, मल्टीप्लेक्सिंग का काम है, मल्टीप्लेक्सर डिवाइस का काम है वो, ठीक है, डिवाइस है वो। तो इसे कैटेगराइज किया गया फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में, टाइम डिवीजन में। तो शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, एफडीएम है। एफडीएम मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और टीडीएम मींस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस है, दिस इज डी मल्टीप्लेक्सिंग। ये सिग्नल देखो, डी मल्टीप्लेक्सिंग का ये है फिगर, दिस वन, ओके। एग्जाम्पल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है। से ये फिगर देखो, यू विल अंडरस्टैंड किसका दिया है, एफडीएम का, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। कैसे यूज हो रहा है, मॉड्यूलेटर, ये टेलीफोन है, थ्री टेलीफोन जो है सिग्नल्स आर कनेक्टेड, ठीक है, सबके अपने अपने टेलीफोन के सिग्नल से दिख रहा है ये। मॉड्यूलेटर ने क्या किया, मतलब मल्टीप्लेक्सर जो डिवाइस है उसने क्या किया, कंबाइन करके एक सिग्नल के थ्रू, एक डेटा, एक चैनल के थ्रू ट्रैवल होगा वो, ठीक है। तो फिल्टर होके वापस क्या होगा वो, फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद अपने डेस्टिनेशन के पास, दिख रहा है ये, वापस से रीच करेगा वो। नाउ सी, इसमें क्या किया गया है, नंबरिंग यू डोंट हैव टू रिमेम्बर, नंबरिंग ऐसी दिया है, 3 वॉइस चैनल्स यूज हुआ है, सबके बैंडविड्थ अलग अलग है। ईच ऑफ द 3 वॉइस चैनल्स टू अ डिफरेंट बैंडविड्थ, सबके बैंडविड्थ अलग है, शोन इन द फिगर 6.6। ये फिगर का यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है। वी यूज अ 20 to 24 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ फॉर द फर्स्ट चैनल, ये इसका बैंडविड्थ है 20 to 24 किलोहर्ट्ज फर्स्ट चैनल का। देन सेकंड चैनल का 24 to 28 है बैंडविड्थ, और थर्ड चैनल का 28 to 32 है। देन इसको कंबाइन किया, देन वी कंबाइन देम एज शोन इन द फिगर 6.6, ठीक है। 20 to 32 तक का रेंज चाहिए, कंबाइन किया गया 22, कहाँ से कहाँ तक रेंज है बैंडविड्थ का, 20 to 32 तक, ये कंबाइन किया गया है।